enzyme kinetics, we will continue with the enzyme kinetics. We have already discussed the V naught and V in the last module, and we will discuss in this module what is Vmax and how it is approached, and how the V naught or the initial velocity is plotted against the substrate concentration in a graphical presentation. हम तीनों तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि V naught, Vmax और जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, by description, by describing our motto, and then we will plot a graph, and then we will derive by the mathematical derivation that what is the combination or what is the relationship between V naught and the substrate concentration. So the maximum velocity, which is denoted here as Vmax, when initial velocity, which is we have defined is the V naught, is plotted against the substrate concentration, a hyperbolic curve is formed, or hyperbolic curve is results, where Vmax represents the maximum reaction velocity. अब यहाँ पे अब हमने कहा है कि एक हाइपरबोलिक कर्व बनेगा. हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला इज एन ओपन कर्व, मीनिंग दैट इट कंटिन्यूज इन्फिनिटली टू इन्फिनिटी. ये कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं होता, स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी की तरफ चलती जाती है एक लेवल पे जाके. इनिशियली ये थोड़ा थोड़ा रेज करता है, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है इन्फिनिटी पे चला जाता है, इन कंट्रास्ट टू दी एन एलिप्टिकल कर्व जो अपने ऊपर ही बंद हो रहा है आपस में. दिस इज दी हाइपरबोलिक कर्व कि जब हम कहते हैं कि हमने प्लॉट किया, वी हैव प्लॉटेड दी V naught, which is the initial velocity. We have this is known as the initial velocity, and we have plotted a graph against the concentration of the substrate, which is in millimole. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली जब हम ऐड करते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज होती जा रही है इस रुख पे. सो देयर इज ऑलमोस्ट लीनियर इंक्रीज इनटू दी V naught. V naught ऑलमोस्ट अगर लीनियर जाएगी तो ऐसे बनेगी. तो ऑलमोस्ट लीनियर इंक्रीज विद दी V naught. V naught इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट इनिशियली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, it is increasing almost proportionately with the substrate concentration. और अल्टीमेटली क्या होता है कि एक लेवल आ जाता है कि जब यहाँ जाके हम कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व, तो यहाँ जाके ये हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गई, ये लेवलिंग ऑफ हो गई, और ये Vmax यहाँ पे है, and it never approaches to Vmax, but it is going parallel to the Vmax. यहाँ पे we can see here that here the substrate concentration, which is increasing here, but it is having almost no effect or very little effect with the substrate concentration beyond this point. The effect of varying substrate concentration on V naught is plotted here, and one important thing is that the enzyme concentration is held constant. हम अगर enzyme concentration को भी यहाँ change करेंगे तो हम उसके साथ जो है वो प्लॉट नहीं कर सकते. So our simplicity, or for a particular type of enzyme and a particular concentration of enzyme, which is held constant, a relatively low substrate concentration, V naught increases almost linearly. In higher substrate concentration, V naught increases by smaller and smaller amounts in response to increase in the substrate concentration. At relatively low substrate concentration में हमने देखा क्या होगा, at relatively low concentration of the substrate, V naught, which is the initial velocity, increased almost linear to the substrate concentration. But at higher substrate levels, or when the substrate concentration increased, the V naught increases by smaller and smaller amounts in response to increase in the substrate concentration, and ultimately a leveling of the point is achieved where the V naught is almost parallel to the Vmax, but it is not reaching Vmax. This plateau-like V naught region is close to the maximum velocity Vmax, जिस तरह आपने पिछली स्लाइड में देखा कि ऑलमोस्ट उसके पैरेलल हो गया, लेकिन उसको अप्रोच नहीं कर रहा. Vmax is extrapolated from the plot कि ये Vmax जो है, ये हमने देखा कि ग्राफ के ऊपर एक लाइन जा रही है, ये उससे ग्राफ से बाहर निकल गई है.
बिकॉज वी नॉट अप्रोचेस बट नेवर क्वाइट रीचेस वी मैक्स। ये कभी भी जो वी नॉट जो है वो वी मैक्स को अप्रोच नहीं करती, उसके पैरेलल जाके प्लेटो टाइप हो गया, प्लेटो लाइक कर्व बन गया, या इस तरह के अपने लास्ट स्लाइड में देखा। Vmax is theoretically maximum rate of reaction, but it is never achieved in reality. This is again the same slide we are discussing by the description and we are discussing by the presentation of this graph कि यहाँ पे हमने कहा जाके कि शुरू में ये linearly increase होता गया और ultimately जब higher substrate concentration पे जाके जब और बढ़ाते गए तो उसका कोई effect नहीं हो रहा। ये हम define करेंगे इसका effect किस लिए नहीं हो रहा। The plateau-like V0 region is close to the Vmax। ये plateau-like हम इसको बोलते हैं कि plateau-like है, इस तरह plateau आ गया, एक straight line से आ गई। This is close to the Vmax बट इट नेवर अप्रोचेज टू Vmax। ये इसके ऊपर जाके इस तरह नहीं लग रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके साथ नहीं जुड़ रहा, तो एक्स्ट्रा प्लॉटेड है। एंड बिकॉज वी नॉट अप्रोचेज बट नेवर रीचेज Vmax, और उसके सामने हमने कहा ये हाइपरबोलिक होता है कि जो उसके साथ साथ चलता रहता है लेकिन क्लोज नहीं होता जाके। एट दिस पॉइंट द ऑफ रिएक्शन इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन को हमने एक लेवल पे कांस्टेंट कर दिया था। ऑल द अवेलेबल एंजाइम सैचुरेटेड विद बाउंड सबस्ट्रेट, देयरफॉर इट मींस दैट ऑल द सबस्ट्रेट और एंजाइम इज प्रेजेंट इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस डिक्टेट्स दैट फर्दर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल नॉट रिजल्ट्स इन एनी इंक्रीज इन V0। हमने पिछले उसमें देखा था कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुरू में है तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उस वक्त एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स वो सारे के सारे सैचुरेट नहीं हुए। वो जो हम उसके साथ सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बढ़ता जा रहा है और उसके साथ एक लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। एक लेवल पे ये आएगा कि सारे का सारा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट ने जो है ना उसके साथ बाइंड कर लिया, अब और सबस्ट्रेट जो भी ऐड करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो V0 जो है ना Vmax के करीब चली गई। दिस इज द डायग्राम विच शोज एट के हमने लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हमने कहा कि ये लीनियरली इंक्रीज करती जा रही थी, इस तरह इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पे जब ये 50, दिस इज द 50% सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिनोटेड एज B। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ 50% साइट्स जो है वो एंजाइम ने सबस्ट्रेट की बाइंड कर ली हैं, और अल्टीमेटली एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे जाके हमने देखा था कि शुरू में ऐसे बढ़ी थी और वहां जाके ये ऐसे जो है ना Vmax के पैरेलल हो गया। सो दिस इज द एरिया वेयर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, एंड it is not changing the Vmax any further. The leveling off of the reaction rate at high substrate concentration reflects the saturation of the substrate, which is of the all available sites of the molecule are present, which are almost all are saturated with the enzyme, as we have seen in the last slide. This finite limit Vmax is called saturation kinetics. अब जो infinity type ये जो काइनेटिक्स बन गई हैं इसको हम सैचुरेशन काइनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर सारे का सारा एंजाइम जो है उसने सबस्ट्रेट को ने सारे के सारे एंजाइम की एक्टिव साइट को सैचुरेट कर दिया। सैचुरेशन काइनेटिक्स इज कैरेक्टरिस्टिक property of all rate processing depending on the binding of ligand to the protein कि ये जितने rate processes हैं ये सारे के सारे जो हैं saturation kinetic से डील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, अगर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को लेते हैं तो वो सबस्ट्रेट लाइगेंड रिएक्शन टाइप होता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, अंदर आता जा रहा है, ट्रांसपोर्टर इसको इस तरह भी एक्ट करते हैं। सो दिस इज द known as the saturation kinetics.